زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی شام کے لیے خدا، ہم تیرے لوگوں کے لیے، تیرے خادمین کے لیے خدا جو آج یہاں پر موجود ہیں، اور بالخصوص خدا ہم تیرے خادم کے لیے ایونجلسٹ پرویز عالم صاحب کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جنہوں نے خدا آج تمام تر خادم الدین کو یہاں پر باہمی خدا جمع کیا اور خدا تیری انجیل کی منادی کے لیے جمع کیا، خدا پاک خدا تیرے کلام مقدس کے لیے جمع کیا، تیری شکر گزاری کرتے دیکھے خدا ہم سب نے تیری پرستش کی، تیرے نام کو عزت اور جلال دیا ہے خدا تیری شکر گزاری کرتے کہ تو ہمارے درمیان میں موجود ہے، کیونکہ تیرے کلام کے طریقہ ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ خدا تو اپنے وعدے کے مطابق اپنے لوگوں میں اترا ہوا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ باقی ماندہ پروگرام کو بھی خدا ہم تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، تو ہم سبوں کو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، میں یہ دعا خدا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم اور گیت گائیں گے، خدا کی شکر گزاری میں بڑھیں گے اور خدا کی تعریف کریں گے، کیونکہ خدا اپنے کلام کی قدرت سے سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ ہم سب خدا کی تعریف میں بڑھتے ہوئے اور گیت گائیں گے بھائی کامران کے ساتھ۔ اور سونے جینا بھی مسیح مرنا نفع، یسوع دے کلام نال کرنی وفا، ہاللویا خدا تیرا شکر، ساری دنیا ہی لگی بڑی ہلکی، ہاللویا جدوں نام یسوع جی دا تول ویکھیا، میرے وچ بیٹھا مینوں دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں تول ویکھیا، اکھیاں دی باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹا مینوں دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹا دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا۔ اب اس کے جلال کے لیے ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھاں دیاں ٹوٹ گئیاں سب بیڑیاں، رحمتاں تے ہور وی نے بتھیریاں، دکھاں دیاں ٹوٹ گئیاں سب بیڑیاں، رحمتاں تے ہور وی نے بتھیریاں، پاکرو دی اودوں پھر پوری مل گئی جدوں نام یسوع جی دا بول ویکھیا، پاکرو دی اودوں پھر پوری مل گئی جدوں نام یسوع جی دا بول ویکھیا، میرے وچ بیٹا مینوں دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹا دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا، اکھاں دیاں باریاں نو بند کر کے دل والا بوہا جدوں کھول ویکھیا۔ مرنا نفع، یسوع دے کلام نال کرنی وفا، ہن جینا وی مسیح مرنا نفع، یسوع دے کلام نال کرنی وفا، ساری دنیا ہی لگی بڑی ہلکی جدوں نام یسوع جی دا تول ویکھیا، ساری دنیا ہی لگی بڑی ہلکی جدوں نام یسوع جی دا تول ویکھیا، میرے وچ بیٹا میں دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا، میرے وچ بیٹا مینوں دسیا مسیح، اپنا ہی آپ جدوں کھول ویکھیا،
ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਚਮਕਾਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਆਖਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਾਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਕਿਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ ਕਿਰਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਿਸਿਆ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਵੇਖਿਆ ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ को बंद करेंगे और अपने पाक हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे क्योंकि जो हमारा खुदा है वो भला है उसकी शफकत अपनी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है आज हम जो इस जगह पर मौजूद हैं उसकी पाक मर्जी के मुताबिक क्योंकि उसने ये समझा कि आज हमें सीखने और सिखाने के अमल को जारी रख सके खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए खुदावंद इवेंजलिस्ट परवेज आलम साहब की इस खसूसी काविश के लिए वापस मानी जिसके वसीला से बाप आज ये जो लीडरशिप का सेमिनार मुनक्किद हुआ खुदावंद आप उनको और ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और जितने खादमीन और लोग इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं खुदावंद आपकी पाक मर्जी के मुताबिक आज खुदावंद वो जो कुछ भी सीखे उसको दूसरों तक सिखाने वाले बने खुदावंद आपकी पाक मर्जी के मुताबिक रब्बुल अफ़वाज आप जो अकेले आसमान को ताने और जमीन को बिछाने की कुदरत रखते हैं हम आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं अजीम बादशाह आज के शब खुदावंद हमारी जिंदगियों में तब्दीली के शब वापस मानी इस वक्त खुदावंद जितनी जाने आपकी हजूरी में झुकी हैं एक एक को आपके जख्मी हाथों में छुपाते आपके पाक फरिश्तेगान हिफाजत और निगहबानी फरमाए सारे प्रोग्राम में खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई चाहते हैं खुदावंद एक एक जिंदगी पर खुदावंद जो आपके हुजूर मौजूद है आपका भारी फजल जारी और सारी हो ताकि खुदावंद आज की ये इबादत आज की सारी फेलोशिप आपके यीशु मसीह का नाम के वसीला से खुदावंद बाइस से बरकत साबित हो और खुदावंद हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आगे बढ़ते चले जाए खुदावंद आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते हैं आपके तमाम खादमीन के लिए आपके तमाम प्यारों के लिए खुदावंद जिन्होंने अपना वक्त निकाला और इस जगह पर मौजूद हुए खुदावंद एक एक के खानदान घराने की सलामती मांग लेते और खुदावंद इस वक्त इस जगह पर मौजूद खुदावंद आपका पाक रूह इन सब के साथ और खुदावंद आपका भारी फजल जारी और सारी हो आपका शुक्र और आपकी तारीफ करते और ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। दावत दूंगी खुदा के बंदा खुदा के खादिम एवेंजलिस्ट परवेज आलिम साहब को कि वो यहाँ पर आएँ और खुदा के कलाम को हमारे दरमियान में पेश करें आपकी ज़ोरदार तालियों में। यीशु में आप तमाम अजीज़ों को बहन भाइयों को बुज़ुर्गों को और ख़ास तौर पर खुदा के तमाम खादमीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चूँकि आज काफ़ी ज़्यादा खादमीन भी यहाँ पर बैठे हैं स्पेशली उनका कि उन्होंने काफ़ी देर से जो है वो वेट किया। हम बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से निकालेंगे मुक़द्दस यसाया की किताब हम निकालेंगे 40 बाब उसकी 8 है। हाँ घास मुरझाती है फूल कमलाता है पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। घास मुरझाती है फूल कुमलाता है पर हमारे खुदा का कलाम क्या है अब तक कायम है। बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी तेरे बगैर ये तहरीर नामुकम्मल थी।
बका के लफ्ज की तफसीर नामुकम्मल थी, तेरे बगैर ये तफसीर नामुकम्मल थी। तेरी सलीब का मंजर न साथ शामिल था, तेरी सलीब का मंजर न साथ शामिल था, तो कायनात की ये तस्वीर नामुकम्मल थी। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम जबान बंद और गुदे गुदे को चीर कर गुजर जाता है, आज हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम फरमाता है कि घास जो है वो मुरझा जाएगी, फूल कुमला जाएगा, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। किस किस का ये यकीन है कि घास चली जाएगी, ये कायनात चली जाएगी, हम सब मिट जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जिसमें यह फरमाया गया है, इस शरीयत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनकर अमल करने वाले क्या है। आज हम देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या हम पढ़ने वालों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, क्या हम सुनने वालों की कैटेगरी में आना चाहते हैं, या सुनकर अमल करने वालों की कैटेगरी में आना चाहते हैं। लेकिन खूबसूरत इस कलाम की बात यह है कि जो इस कलाम को पढ़ता है, जो सुनता है, वो सुनकर बदल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जो बहुत सी जुबानों में लिखा गया, और बाइबल मुकद्दस के बारे में लिखा गया है, जैसे मैंने पढ़ा कि शरीयत की किताब का पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनकर अमल करने वाले क्या है, मुबारक हैं। तो हम सब जो है इस बात पर ईमान रखते हैं। बाइबल मुकद्दस जो है, इसको जो है वो तकरीबन 2043 जुबानों में जो है वो इसकी ट्रांसलेशन अभी तक हो चुकी है। 2043 से ऊपर भी जो है वो आप अभी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 2043 जुबानों में जो है वो अभी तक इस बाइबल मुकद्दस का जो है वो तर्जुमा हो चुका है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जबानबंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है। यह फरमाता है कि जो मुझ पर, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो मुझ पर ईमान रखेंगे उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मुझ पर ईमान नहीं रखते उन पर सजा का हुक्म हो चुका। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा और लाफानी किताब जो हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए इस ज़माने में मौजूद है। हम बाइबल मुकद्दस के मानने वाले और बहुत से लोग जो है इस बात पर सवालिया निशान उठाते हैं। वो कहते हैं देखो जी बाइबल मुकद्दस बदल गई। बहुत से टेलीविजन पर जो है इस बात की तशहीर की जाती है, बहुत से और सोशल मीडिया पर जो है वो इस बात की तशहीर की जाती है कि बाइबल मुकद्दस बदल गई। लेकिन हम ईमान वाले, हम जो यीशु मसीह की अलूहियत पर यकीन रखते हैं, हम जो यीशु मसीह की जो है वो बका पर यकीन रखते हैं, हम जो यीशु मसीह के आसमान से जमीन पर आ जाने पर यकीन रखते हैं, हम जो यीशु मसीह के बेटा होने पर यकीन रखते हैं, और हम जो यीशु मसीह के दोबारा आमद पर यकीन रखते हैं, और हम जो यीशु मसीह की मौत पर फतह पा जाने पर यकीन रखते हैं। हम ये कहते कहते अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं कि बाइबल मुकद्दस कभी बदली नहीं, बल्कि जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बदल जाते हैं। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी खूबसूरत किताब जिसको मिटाने की कोशिश जो है ना सिर्फ मौजूदा जमाने में लोग कर रहे हैं, बल्कि अगर हम तारीख का मुताला करें तो भी हमें यह बात मिलती है कि बाइबल मुकद्दस को मिटाने के लिए बहुत से सूरमा आए और बहुत से जंगजू लोग आए, बहुत से जो है वो स्कॉलर्स आए जिन्होंने कहा कि बाइबल मुकद्दस की को हम सफाई हस्ती से मिटा दें। लेकिन बाइबल मुकद्दस का खूबसूरत जो है वो ये बाइबल मुकद्दस जो है वो आज तक जो है वो हमारे हाथों में मनो अन जो है वो कायम है। लेकिन वो मिट गए जो कहते थे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो मिट जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस दूसरा तिमोथियुस उसकी 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है इल्जाम और सलाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। आमीन। अब मैं आपको बाइबल मुकद्दस, जैसे मैंने कहा कि बहुत से जो है वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल गई, लेकिन हम ईमान वाले ये कहते कहते अपनी जानों के नजराने पेश कर देते हैं कि बाइबल मुकद्दस कभी बदली नहीं, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सुनकर बदल जाते हैं। आमीन, आमीन। ये बाइबल मुकद्दस जो है वो खून की नदियों पर तैरती हुई हमारे हाथों में आज मनोमन मौजूद है।
अगर हम तारीख का मुताला करें, अगर हम बाइबल मुकद्दस को जो है वो पढ़ना शुरू करें, तो हमें मिलता है कि खुदा के शागिर्दों ने, यीशु मसीह के शागिर्दों ने और खुदा के फॉलोअर्स ने जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खास तौर पर जो यहोवा खुदा पर ईमान रखने वाले थे, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन बाइबल मुकद्दस की हुर्मत पर जो है वो कभी आंच नहीं आने दी। हालेलुया। तारीख की अगर हम बात करें तो वोल्टेयर नामी एक शख्स था जिसने जो है वो ये दावा किया कि बाइबल मुकद्दस जो है वो आइंदा आने वाले 100 साल में जो है वो सफा हस्ती से मिट जाएगी। ये वोल्टेयर नामी शख्स जो है इस बात का दावा करता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खत्म हो जाएगी, आइंदा आने वाले 100 सालों में बाइबल मुकद्दस आपको जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस, ये वोल्टेयर जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं, खूबसूरत बात जो है मैं आपको बताने को हूं इस शख्स के बारे में कि जिस बंदे ने यह दावा किया कि बाइबल मुकद्दस आइंदा आने वाले 100 सालों में खत्म हो जाएगी, वो 100 सालों में इस दुनिया से मिट गया, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। हालेलुया, आमीन। और बड़ी खूबसूरत जो है वो गवाही की बात है कि इस बंदे वोल्टेयर ने जब ये दावा किया तो जिस घर में बैठ के इसने दावा किया, जिनेवा बाइबल कन्वेंशन वालों ने क्या किया कि इस हिस्ट्री की बात है कि जिनेवा बाइबल कन्वेंशन वालों ने, इस बाइबल सोसाइटी वालों ने क्या किया, उसी के उस घर को जिसमें उसने ये दावा किया कि बाइबल मुकद्दस खत्म हो जाएगी, वहां पर उन्होंने एक छापा खाना बनाया उस घर को खरीद कर, और उस छापा खाना से जो है वो बाइबल मुकद्दस जो है वो दुनिया में प्रिंट होकर जाना शुरू हो गई। हालेलुया। उसी घर में जिसमें ये दावा किया गया कि बाइबल मुकद्दस मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, वहां पर खुदा ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां पर बाइबल मुकद्दस को प्रिंट करने की मशीनें लगी। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा बाइबल मुकद्दस को मिटाने की कोशिशें तो बहुत सी दुनिया ने की है। अगर हम तारीख का मुताला करें, बाइबल मुकद्दस में भी पढ़ते चले, हमें फिरौन नामी एक शख्स मिलता है। फिरौन कहता था कि आई एम द गॉड, और जब ये वर्ड जो आई एम है ये खुदा अपने लिए इस्तेमाल करता है, यहां पर फिरौन भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिरौन कह रहा है कि मैं भी खुदा हूं। तो इस जमीन पर बहुत से जो है वो खुदाई का दावा करने वाले आए, फिरौन आया, रुस्तम आया, शद्दाद आया, और बहुत से और जो है वो खुदाई का दावा करने वाले आए, लेकिन वो सारे इस जमीन पर जो है वो मिट गए। और शायर क्या खूब कहता है, करें याद किस किस को रोए, इन आंखों ने देखे समा कैसे कैसे, करें याद किस किस को रोए, इन आंखों ने देखे समा कैसे कैसे, ना रुस्तम बाकी रहा ना शद्दाद, जमीन खा गई पहलवान कैसे कैसे। इस जमीन ने जो है वो बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को जो है वो अपने नीचे जो है वो ले लिया, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम, जिसको मिटाने की कोशिश जो है वो, अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पता चलता है कि कैसर, जिसके बारे में ये कहा गया था, यीशु मसीह से ये सवाल किया कि कैसर को जजिया देना जमा है या नहीं, तो ये कैसर की हुकूमत है, और कैसर की हुकूमत में भी जो है वो बाइबल मुकद्दस को जो है वो कोशिश की गई कि बाइबल मुकद्दस मिट जाए, लेकिन कैसर की हुकूमत जाती रही और बाइबल मुकद्दस आज भी हमारे हाथों में जिंदा है। हालेलुया। इसी तरह रूमी हुकूमत की बात करें, रोमियों की बात करें तो उन्होंने भी इंतहाई ज्यादा कोशिश की। इसी तरह अगर हम साउल की बात करें जो है बाद में जो है वो पौलुस बन गया, उसने भी और बहुत से रोमियों ने जो है वो कोशिश की कि बाइबल मुकद्दस को जो है वो हम खत्म कर दें, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो है वो रोमी फौज तो चलेगी, रोमी हाकिम तो चले गए, फिरौन का गुरूर तो मिट गया, और यहूदा अस्कर यूदी जिसने यीशु मसीह पर जो है वो ये इल्जाम लगाया और उसको पकड़वाने की कोशिश की और उसको पकड़वाया भी, और वो सब तो इस जमीन से मिट गए, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी हमारे हाथों में मौजूद है। हालेलुया, आमीन। अब बाइबल मुकद्दस के चंद नुस्खा जात पर बात करेंगे, चूंकि यहां पर स्टूडेंट्स भी हैं इसलिए मैं जल्दी से जो है वो बयान करना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे के जो नुस्खा जात हमारे पास मौजूद है हिस्टोरिकली, जो जनेवा बाइबल सोसाइटी में मौजूद है, या और जो है वो बहुत सी बाइबल सोसाइटीज जो दुनिया में मौजूद है, वहां पर जो नुस्खा जात पड़े हैं उनमें नए अहदनामा के अगर आप नुस्खा जात देखें तो 306 जो है वो नुस्खा जात जो है वो बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा के पड़े हैं।
इसके अलावा 20,403 जो है वो तलावतनामे मौजूद हैं। कितने? ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, 20,403 जो है वो तलावतनामे मौजूद हैं। और छोटे हरूफ वाले जो नुस्खे हैं वो 2856 जो है वो नुस्खे भी बाइबल मुकद्दस के अभी भी मुख्तलिफ जो है वो बाइबल सोसाइटीज में मौजूद है। इसी तरह यूनानी नुस्खे जो है वो कुल 5,664 है और हजारों की तादाद में जो है वो तर्जमे बाइबल मुकद्दस के मौजूद है। इसी तरह 10,000 लातीनी जुबान के नुस्खे हैं और 8,000 नुस्खे एथोपियस, सेमेट और आर्मीनियन जुबान में जो है वो मौजूद है। यानी बहुत से नुस्खा जात बाइबल मुकद्दस के ऐसे हैं, अगर आप कोशिश भी करना चाहें, और हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि लोगों ने कोशिश भी की कि बाइबल मुकद्दस को खत्म किया जाए, लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो खत्म होने वाली नहीं, बल्कि जो उसको पढ़ता है वो बदल जाता है। आमीन। ये सिकंदरिया की लाइब्रेरी दुनिया में बड़ी मशहूर और दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो लाइब्रेरी इसको कहा जाता है सिकंदरिया की। सिकंदरिया की लाइब्रेरी जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसको क्या किया, वहां पर बहुत से ज्यादा जो है वो नुस्खा जात मौजूद थे। अगर हम इंटरनेट पर भी सर्च करें तो हमें नजर आता है कि सिकंदरिया की लाइब्रेरी में बहुत से जबरदस्त जो है वो बाइबल मुकद्दस के जो है वो जेन्युइन नुस्खे जो है वहां पर मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वहां पर रोमियो ने जो है वो उस पर हमला किया तो उसने जो है वो सिकंदरिया की लाइब्रेरी को इस गर्ज से उन्होंने जला दिया कि बाइबल मुकद्दस जो है वो खत्म हो जाएगी। बाइबल मुकद्दस जो है यहाँ पर उसके नुस्खे जो है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने सिकंदरिया की लाइब्रेरी पर हमला करके उसको आग से जला दिया तो वहां पर बाइबल मुकद्दस के चूंकि नुस्खा जात जो है वो रोल करके जो है वो अलमारियों में रखे जाते थे, तो वो जब उन्होंने जलाया तो वहां पर भी जो है वो बहुत सारी किताबें जो है वो बाद में जो है वो सेव रही और खुदा ने अपने कलाम को जो है वहां पर भी तकवीयत दी। अब हम चूंकि टाइम का मैं शॉर्ट में आसार कदीमा के लिहाज से मैं बात करूंगा। 1878 में नासर से एक हुक्मनामा मिला। 1878 में क्या हुआ, नासर से एक हुक्मनामा मिला जिसका नाम था द नासर डिक्री। द नासर डिक्री जो है के नाम से ये हुक्मनामा जब जारी किया गया तो यहां पर एम्प्रेस क्लॉडियस नाम का एक शख्स था जिसने ये हुक्म जारी किया। जब यीशु मसीह को जब है कब्र से जो है वो जब स्लीप से उतार के कब्र में रखा गया तो वहां पर एक बात में शुरू हो गई कि यीशु मसीह की लाश जो है वो चोरी होगी। तो जब ये लाश चोरी होने का सिलसिला शुरू हुआ तो ये एम्परर क्लॉडियस नाम का जो शख्स है इसने एक हुक्मनामा उस वक्त में जारी किया। एक हुक्म लिखा इसने कि आज के बाद अगर कोई भी जो है वो लाश चोरी की बात करे या लाश चोरी करे तो वो जो है उसको सजाए मौत दी जाएगी। तो लिहाजा ये जो एम्परस क्लॉडियस ने जो है 1878 में हुक्मनामा जारी किया, ये भी जो है वो बाइबल मुकद्दस का ये भी प्रूफ है कि उस वक्त जो है वो यीशु मसीह की लाश चोरी की जो है वो बात हुई। तो ये बात भी साबित करती है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ऑथेंटिक किताब है। अगर हम गलील की झील की बात करें तो गलील की झील से 1936 में एक कश्ती दरियाफ्त हुई। कौन से साल में? 1936 में एक गलील की झील से जो है वो कश्ती दरियाफ्त हुई जिस पर यीशु मसीह ने सफर किया। तो ये भी बात जो है वो साबित हो गई। सारे कदीमा ने जब खुदाई करने के बाद जो है उनको ये चीजें मिली तो ये बात भी ऑथेंटिक साबित हुई कि जो बाइबल में लिखा है वो साबित हुआ। इसी तरह 2005 में जो है वो शोलोख का हौज जो है वो दरियाफ्त हुआ। शोलोख का हौज दरियाफ्त हुआ जिसमें यीशु मसीह ने अंधे से कहा कि उस पर जो है वो अपनी आंखें धो तो तुझे शिफा मिलेगी। और ये हौज जो है वहां पर जो है वो आज जब उसकी खुदाई की गई तो ये हौज भी जो है, इसी तरह बैते हस्ता का हौज भी आप जानते हैं कि जहां पर जो है वो क्या होता था, जहां पे पानी हिलता था और फरिश्ता वहां पे आता था। तो वो हौज भी जो है वो असारे कदीमा वालों ने वो हौज भी ढूंढ निकाला है और आज भी जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है वैसे एज इट इज जो है वो हौज जो है वो बयान करता है और उसके दरवाजों के बारे में कि कहां से जो है वो लोग। अभी मैं कल थोड़े दिन पहले जो है वो फेसबुक पे देख रहा था ये स्टोरी कि बैते हस्दा का जो है वो किसी ने बना के दिखाया था कि ये बैते हस्दा का वो हौज है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा था वो दरियाफ्त हुआ। तो बाइबल मुकद्दस असारे कदीमा के लिहाज से भी जो है वो साबित करती है कि बाइबल एक सच्ची और कबूल की जाने वाली किताब है। इसी तरह मुकद्दस लूका रसूल अपनी अंजील में जो है वो 23 ममालिक का जिक्र करते हैं
جن میں 54 شہروں اور 9 جزیروں کو آثار قدیموں والوں نے بھی ان کو بھی جو ہے وہ کیا کیا ہے، انہوں نے اس کو ڈھونڈ لیا. جو بائبل مقدس میں بات لکھی ہے آثار قدیمہ نے سرچ کرنے کی، اور یہ سرچ جو ہے وہ کس غرض سے کی گئی؟ سرچ اس غرض سے بھی کی گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائبل کہہ رہی ہے پتہ نہیں سچی ہے کہ نہیں بات. تو انہوں نے کیا کیا، اس غرض سے بھی جو ہے وہ جب تلاش شروع کی تو ان کو جو ہے وہ ایز اٹ از چیزیں ملی جیسے بائبل مقدس میں بیان تھی. ہاللیلویہ. تو خدا کا کلام جو ہے وہ بدلا نہیں بلکہ بدل دیتا. ہاللیلویہ. سائنس کی روح سے بات کروں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ سانپ کے جو ہے وہ خدا نے جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو آدم اور حوا کے گناہ کرنے کے بعد سانپ کو بھی ایک سزا سنائی گئی. سانپ کے جو ہے وہ کان بند کر دیے. سائنس بھی یہ بات بیان کرتی ہے. تو اتھینٹک بات جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے جو ہے وہ خدا نے سانپ کے جو ہے وہ کان بند کر دیے تو وہ جو ہے وہ سنتا نہیں. تو یہ بات بھی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے جو بات کر رہی ہے وہ اس پر قائم ہے. زمین گول ہے. سائنس کی روح سے زمین گول ہے. بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں مثال 8 باب اس کی 27 آیت جس آیا 40 اس کی 22 آیت میں بائبل مقدس نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. لہذا بائبل مقدس خدا کا زندہ لافانی اور نہ تبدیل ہونے والا کلام ہے. اگر ہم قرآن کی روح سے دیکھیں تو سورہ المائدہ 44 نمبر آیت میں لکھا ہے ہم نے تو ریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. جس میں کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی ہے. اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 48 میں اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر اور پرہیزگاروں کے لیے عطا فرمائی. سورہ المائدہ میں لکھا ہے کہ مسیحی اور یہودی اہل کتاب ہیں. نہ صرف بائبل کی اتھینٹسٹی اس کی صداقت کی بات جو ہے وہ مسیحی کہتے ہیں بلکہ غیر اقوام اور بہت سے اور الہامی مذہب جو ہے جن کو الہامی مذہب سے تشبیہ دی جاتی ہے یا مانا جاتا ہے وہ سارے اس بات پر جو ہے وہ مور کرتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ایک روشنی کی کتاب ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کو مانو, اس کو سنو, اس کو سمجھو کیونکہ بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے. بائبل خدا تو بہت ہے. اس زمین پر بہت سے خدا ہیں. ایسے ہی ہے نا. میرا خیال ہے کہ مور دین تھاؤزنڈ میں جو ہے ہزاروں میں جو ہے وہ خدا موجود ہے زمین پر. جب ہم لاسٹ ٹائم سنگاپور ملیشیا میں گئے اور دبئی میں وہاں پہ جانا ہوا تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے ہاتھی جو ہے وہ رکھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں. لوگ جو ہے وہ کیلے کے درخت کی پوجا کرتے ہیں. لوگ جو ہے وہ چوہوں کی پرستش کرتے ہیں. لوگ اور بھی بہت سے جو ہے لوگوں نے خدا, کوئی سورج کو مان رہا ہے, کوئی چاند کو مان رہا ہے. لیکن خدا کا بندہ داؤد یہ فرماتا ہے جاتی جولیت کے سامنے آ کر کہ میں تجھے اسرائیل کی فوجوں کے لشکر کے خدا کے نام سے آتا اور تجھے شکست دیتا ہوں. ہاللیلویہ. اسرائیل کی فوجوں کے لشکر کا خدا ہمارا خدا ہے, جو ابراہیم کا خدا ہے, جو اسحاق کا خدا ہے, جو یعقوب کا خدا ہے اور جو بنی اسرائیلیوں کا خدا ہے. ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں اور ہم اس کے ہر ایک ورڈ پر جو اس کے منہ سے صادر ہوا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس ایمان کا برملا اقرار کرتے ہوئے اور بھی اس ٹی وی چینل کے دیکھنے والوں کو اور اس چینل کے تھرو جس تک بھی یہ بات جائے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بائبل مقدس کو پڑھتا ہے, جو سنتا ہے وہ بدل جاتا ہے. بائبل مقدس آپ کی زندگی کے لیے ایک خوبصورت کتاب ہے. بائبل مقدس خدا کا زندہ لافانی کلام ہے جو زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے اور جو صحیح راستہ ہے جس کے تھرو آپ آسمانوں کی اونچائیوں پر جا سکتے ہیں. ادروائز آپ کی زندگی کا جو اجر ہے وہ ہمیشہ کی آگ ہے. بائبل مقدس کو مانیں گے, اس کو سنیں گے, اس کو پڑھیں گے اور یہوہ خدا کی پرستش کریں گے تو خدا آپ کو برکت دے گا. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بلیس کرے. آمین. میرا نام مبشر جاوید عالم ہے اور ہم پچھلے تقریباً 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہمارے پاس خدا ان کا یہ زندگی بخش پاک کلام ہوتا ہے جو کہ ہم پورے پاکستان میں فری تقسیم کرتے ہیں. اور اب تک ہم تقریباً 8000 سے زیادہ بائبل مقدس تقسیم کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس خادمین کے لیے تفصیلی سیٹس ہوتے ہیں, سنڈے اسکول ٹیچرز کے لیے کورسز ہوتے ہیں اور سنڈے اسکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے
चिल्ड्रंस बाइबल्स होती हैं और इसी तरह तफसीरी कुतब्स होती हैं जो कि हम खादमीन को देते हैं। और आपको किसी भी इलाके में अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर लोग ख़रीद नहीं सकते तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द उस इलाका में पहुँच कर खुदा उनके कलाम की फ्री तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। खुदा आप सबको कर सकें। खुदावंद तो जो प्यारा अजीम भला वादों का सच्चा खुदा है, तो जो मुजस्सिम कलाम है और खुदावंद तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। सोने चांदी के 1000 सिक्कों से बेहतर है। हम सबको तेरे कलाम पर एतमाद है। खुदावंद जितने तेरे खादमों के पास, लोगों के पास तेरा जिंदा कलाम पहुंचा है, वो खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम करे, बंधन टूटे, जोड़ टूटे। और खुदा पाक खुदा हम तुझसे बेशुमार बरकत को क्लेम करते हैं अपने प्यारे भाई जुबैद के लिए, खुदा पाक खुदा अपनी छोटी बहन के लिए, और खुदा पाक खुदा मजलिस प्रोज आलम के लिए, और खुदा छोटी बहन के लिए, और ख़ास तौर पर खुदा पाक खुदा इस वक्त तेरी हज़ूरी में हम भाई इकबाल को भी याद करते हैं। खुदा इन सारे भाइयों को, इनके खानदानों को ब्लेस कर, ताकि खुदा पाक खुदा तो जिस तौर पर कसरत से ने खुदा पाक खुदा कलाम के फैलाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इसी तरह तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते चले जाएं, सोर्सेस खुलते जाएं और लोग बरकत पाते चले जाएं, यीशु के पाक नाम में आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ हाज़िर जमात, और ख़ास तौर पर खुदा पाक खुदा मेरे प्यारे भाइयों और उनके ख़ानदानों के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन।